112 زبور کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 112 کلام مقدس میں سے میں تلاوت کروں گا 3 آیتیں. آپ سب میرے ساتھ رہیے گا. سب نے نکال لی ہے؟ زبور 112 کی پہلی آیت سے، خداوند کی حمد کرو. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آپ سب تشریف رکھیں. میرے عزیزو، ہم ہر روز، ہر ہفتے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنے لیے سیکھتے رہتے ہیں. یہ خدا کا فضل ہے. جب ہم سیکھتے رہتے ہیں اور اس پر ہمارا عمل ہوتا رہتا ہے تو خدا کی بلیسنگ جو ہے وہ ہمارے لیے جاری اور ساری ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جاری اور ساری ہو جاتی ہے. اور آج کا جو میسج ہے یا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے نسلوں کو برکت. خداوند کے طرف سے نسلوں کے لیے برکت، نسلوں کو برکت خداوند کس طرح سے دیتا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہماری نسلوں کو کس طرح سے برکت مل سکتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ دعا کریں، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ کسی طرح سے یہ سیدھے رستے پر آ جائیں. پاس صاحب ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں. آپ اپنے گھر میں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں، چرچ میں بھی ان کے لیے دعا کریں. تو اسی طرح سے ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا بھی چاہیے. جب ہم اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو یہ بات خدا کو پسند ہے اور ہم سب اس کے لیے دعا بھی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ہم دوسروں کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لوگ ہماری اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی برکت بھی ملتی ہے، اثر بھی ہوتا ہے اور خدا اس کا اثر پھر ہمیں دکھاتا بھی ہے، اسی دنیا میں بھی دکھاتا ہے. اور جب ہم اس جہان فانی میں نہیں ہوتے بعد میں بھی خدا اثر دکھاتا ہے جو ہم نے خدا کے ساتھ وقت بتایا ہوتا ہے. ہم نے خدا کے ساتھ جو وقت بتا دیتے ہیں، یہ جو وقت بتایا ہوتا ہے نا، وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. وہ اس کا اجر ہمیں یقینی ملنا ہی ملنا ہے، مل کے رہنا ہے. یہ 110% بات ہے کہ اس کا اجر ہمیں مل کر ہی رہنا ہے. خدا کسی کا اجر رکھتا نہیں ہے. ہم رکھ لیتے ہیں، ہم دوسرے کی چیز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ نہیں رکھتا. وہ ضرور ہی ضرور ہمیں، ہماری جتنی بھی ہم نے محنت کی ہوتی ہے خدا کی حضوری میں، اس کا اجر ہمیں خداوند دیتے ہی دیتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، آج تک ہوا نہیں ہے ایسا کہ خدا نے کسی کی محنت رکھی ہو اور اس کو اس کا اجر نہ دیا ہو. سب سے پہلے لکھا ہے خداوند کی حمد کرو. کیا کرو؟ خداوند کی حمد کرو. ابھی ہم نے خوب حمد کی، پرستش کی اور اپنے پورے دل سے ہم نے پرستش کی. اور جتنے بھی لوگ جب مسرور ہو کر خداوند کی حضوری میں پرستش کرتے ہیں تو اس کا اجر اسی وقت یقینی ہے، کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ اسی وقت آپ کو اس کی بلیسنگ مل رہی ہوتی ہے. آپ اسی وقت خدا کے اندر جھوم رہے ہوتے ہیں، مسئلے میں آ جاتے ہیں اور خدا جو ہے آپ کی دعا کو سن رہا ہوتا ہے جو آپ کے دل کی دعا ہوتی ہے. بے شک آپ اس وقت دعا نہیں کر رہے، آپ کچھ مانگ نہیں رہے، لیکن آپ صرف پرستش کر رہے ہیں. لیکن دعا آپ نے پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ دعا آپ کریں گے تو خدا کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، چونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں. تو خدا ہمیں، میرے عزیزو، وہ چیزیں جو ہیں وہ مہیا کر دیتے ہیں.
दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि पहली आयत का ये हवाला है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। इस पर जब मैंने गौर किया तो मैंने वर्ड जो खूब था उसके ऊपर मैंने ज्यादा गौर किया। खुदा ने मेरी तवज्जो इसके ऊपर लगाई कि खूब क्या है। जो खुदा के हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, इसमें जो जोरदार बात है वो खूब है कि जितना हम खूब तरीके से खुदा के हुक्मों में मसरूर रहेंगे, उतनी ही खुदा हमारी नस्ल को, हमारे बच्चों को, हमें, हमारे घराने को खुदा जो है वो बरकत देगा। आप जानते हैं कि हजरत नूह के जमाना से एक ही मुनादी होती आ रही है। क्या मुनादी हो रही थी उसके दौर में? कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज भी यही मुनादी है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और तौबा करने के बाद करना क्या है हम लोगों ने? हमने ये करना है कि हम खुदा के हुक्मों पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। ये बात खुदा को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर खुदावंद जो है हमें, दूसरी आयत में लिखा है, इसकी बरकतें लिखी हैं, देखें जरा इसकी बरकत को। उसकी नस्ल जमीन पर क्या होगी? जोरावर होगी, जोरावर होगी उसकी नस्ल जमीन पर। जब मेरे अज़ीज़ों हम जो है दुआ को होंगे तो हमारी नस्ल जो होगी वो उससे जोरावर होगी। मैं एक घर में गया तो वो छोटे से बच्चे को उन्होंने मेरे सामने किया कि इसको देखे ये दुआ करता है, तो वो बच्चा जो दुआ कर रहा था वो साथ में बदरूहों को भी निकाल रहा था। यीशु मसीह के नाम से निकल जा, निकल जा, दूर हो जा, क्योंकि वो माँ बाप जो है वो खुदा के में अंदर मसरूर है और उनकी नस्ल क्या है? जोरावर हो रही है, ताकत है उनके अंदर। वो बचपन से ही कह रहा है कि ए गंदी बदरू, यीशु के नाम से दूर हो जा। आप जब उस बच्चे को देखते, जैसे मैंने देखा, तो आप भी ऐसे खुश होते। जब आप पे बच्चे ऐसे एक्ट करते हैं तो आपको जब खुशी होती है, जब आपके बच्चे ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो कब ऐसा होता है? जब हम जब खुदा के साथ उसके हुक्मों में मसरूर होते हैं। इसलिए खुदा को अपने हुक्म मनवाना बहुत ज्यादा पसंद है। हर कोई अपने हुक्म मनवाना चाहता है। घर में आप हैं, आपका कोई हुक्म ना माने तो आपको वो बच्चा अच्छा नहीं लगता, वो बहन भाई अच्छा नहीं लगता। आप अपना हुक्म मनवाना पसंद करते हैं। तो जब आप अपना हुक्म मनवाना पसंद करते हैं तो हमारा बाप जो है वो भी, उसी से तो हमने सीखा है। हम खुदा से कुछ ही कम है। खुदा ने हमें अपने से कुछ ही कम बनाया है, बाकी आप भी खुदा ही हैं। आपको भी खुदा ने अपने जैसे ही बनाया, खुदा जैसी सिफतें रखी हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए खुदा को ये बहुत पसंद है कि हम क्या करें? उसके हुक्मों को माने। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो वो हमारी नस्ल को बरकत दे देगा, वो हमारी नस्ल को बरकत देगा और ऐसी बरकत देगा कि वो जोरावर होंगे, वो कुव्वत वाले होंगे, वो लड़ेंगे और हारेंगे नहीं। अब इब्लीस से लड़ने की बात हो रही है, डंडे सोटे वाला लड़ना नहीं। आप कहीं तो चले जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो लड़ेंगे तो वो कभी हारेंगे नहीं, जब हम खुदावंद के साथ मसरूर रहेंगे। मैं एक बुजुर्ग को जानता हूँ, हमारे मोहल्ले में वो बुजुर्ग थे, साधु रहमत मसीह उनका नाम था। उनकी औलाद का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, वो बुजुर्ग जो थे वो खुदा में मसरूर रहते थे। उनका नाम था साधु रहमत। क्या नाम था उनका? साधु रहमत। और वो खुदा में बहुत ज्यादा मसरूर रहते थे, लेकिन उनका घर जो था वो खस्ता हाल था। उनके साथ ब्लेसिंग नजर नहीं आती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये खुदा के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे। वो उनकी मतलब उनके घर को, उनके हालात को देखकर ऐसा लगता था कि उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। उनका बेटा, बड़ा बेटा हमसे बड़ा था वो मोहल्ले का जो है ना एक नंबर मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का था। व्हीलिंग करना, ये करना, वो करना, वो मशहूर था हमारे मोहल्ले में। और
एक नंबर वो मजाक करने वाला, झूठ बोलने वाला, और हर किसी को गली में जाते हुए हंसाना, जाते हुए लड़कों को, हम छोटे थे उससे काफी, हमें भी छेड़ते हुए चले जाना, तो हम भी उसकी बात को पाजी कह के उसको हम खुश हो जाते थे, क्योंकि हम तो उसको कुछ कह ही नहीं सकते थे। लेकिन उनका अबू जो था ना, वो खुदा में मसरूफ रहने वाला शख्स, साधु, चर्च में वो बहुत ज्यादा वो दुआ करने वाला और बहुत अच्छी शख्सियत थी वो। उसका एक और बेटा था, वो थोड़ा सा वो सीधा ही था, मतलब वो इतना होशियार नहीं था, लेकिन वो अपने अंदर बहुत ज्यादा होशियार था, लोगों को लगता था वो होशियार नहीं है। और उसके 2 बेटियां थी और दोनों खुदा में इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन वो शख्स इस तरह से खुदा की हुजूरी में चलता रहा कि उसने पूरी जिंदगी अच्छी गुजारी, उसकी औलाद को तो उसकी बरकत नहीं मिली। लेकिन जब उसकी तीसरी उसके बच्चों को देखा, तो आज वो मोहल्ले में करोड़पति हैं, उनकी इतनी महंगी बिल्डिंग है कि मोहल्ले में ऐसा घर नहीं है किसी का, इतना महंगा किसी का घर नहीं है, मेरा भी किसी का इतना महंगा घर नहीं है, इतनी ज्यादा खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी हुई है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदा ने दाऊद से कहा कि मैं तेरी मर्जी, तेरी जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तेरी औलाद से ये काम करवाऊंगा, तो खुदा एक अगर पुष्ट को बरकत नहीं देता तो उसकी बरकत जो है वो अगली पुष्ट पर चली जाएगी। वो पुष्ट जो हमें नजर आ रही है, वो खुदा के साथ उस तरह से नहीं है। आप लोगों का कई दफा रिजल्ट निकालते हैं, कई दफा लोगों को देखते हैं कि ये खुदा के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे देखो, इनका घर देखो, ये तो खुदा के साथ है ही नहीं, लगता ही नहीं खुदा के साथ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि खुदा आपकी मेहनत को जो है ना वो रखेगा नहीं, रायगा नहीं जाना देगा, आपकी नस्ल को यकीनन बरकत मिलेगी। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई कि वाकई मोहल्ले में इतना महंगा किसी ने घर नहीं बनाया, जितना बड़ा और जितना महंगा उन्होंने घर बनाया। उसके बच्चे बाहर दूसरे मुल्कों में उनका पोतों का आना जाना इस तरह से जैसे वो कराची से हैदराबाद चले जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये ब्लेसिंग्स जो होती हैं ये हमारे साथ रहती हैं। खुदा किसी का कर्ज रखता नहीं है। मैं छोटा सा था जब मैंने उनको देखा कि वो खुदा के साथ बहुत ज्यादा मगन रहते थे, साधु ग्रुप में वो बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत ज्यादा वो मशहूर थे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये ब्लेसिंग है। जब हम खुदा के साथ उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं तो यकीनन खुदा हमें ब्लेस करता है, बरकत देता है। अगर एक कुछ बादशाहों की जो सीरियल लिखी है ना बाइबल मुकद्दस में, कई जगह पर खुदा ने बादशाहों की औलाद को रद्द किया। उन्होंने बोला नहीं, तेरी इस पुष्ट को मैं बरकत नहीं दूंगा, बल्कि इसके अगली को दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसके या इसी को दूंगा। ये खुदा की मर्जी है कि खुदा किस तरह से हमारे लिए बरकत को डिसाइड करते हैं। तो खुदा ने उनके लिए ये बरकत रखी और उनको दी। हम समझते हैं कि शायद हमें नजर नहीं आता, हम कहते हैं खुदा सानू दे ही नहीं रहा, खुदा ने सानू देना ही नहीं हो रहा, साड़ियां दुआवां किधर जान रही हैं। आपकी दुआएं कहीं नहीं जा रही, आपकी दुआएं सारी स्टोर हो रही हैं। आपका प्याला जो है खुदा के तख्त के सामने रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो कभी वहां से हटेगा नहीं जब तक आप जीते हैं। जब तक आप जीते हैं वो प्याला वहां से हटेगा नहीं, बल्कि उसके अंदर आपकी प्रेज जो है वो जमा होती रहेंगी। एक वक्त आएगा कि वो आप पर जो है वो डेरी जाएंगे और आपको वो मिलेंगी। मैसेज तो मैंने बहुत बड़ा तैयार किया है, तकरीबन ये तो मुझे लग रहा है 4 घंटों का मैसेज है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको इधर ही हम कोशिश खत्म करें। लिखा है, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। रास्तबाजों की औलाद क्या होगी? मुबारक होगी। आपकी औलाद, आप रास्तबाज हैं, आप खुदा के साथ चलते हैं, तो आपकी औलाद मुबारक होगी। मुबारक का मतलब है खुशी की उनके पास कमी नहीं होगी, वो खुश होंगे, हद से ज्यादा खुश होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि जितने वो खुश होंगे। रास्तबाज रहना, उसके हुक्मों में मसरूर रहना, ये जो हमारे करने का काम है वो क्या है कि उसके हुक्मों में हम क्या रहें? मसरूर रहें। हम उसके हुक्मों का लिहाज करें, तवज्जो दें उसके हुक्मों पर और उनको मानने की हर वक्त कोशिश करते रहें। कोशिश में ढील ना करें, कोशिश में ढील ना करें। जब हम उसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, माल व दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। माल व दौलत क्या है? उसके घर में है। इसी से हम आज नापते हैं ना लोगों को, बरकत को। हम किसी की ब्लेसिंग को इसी से नापते हैं।
किसी के पास कोई भूखा मर रहा है तो हंसी कहने का खुदा है नाल है ही को नहीं, ये तो पता नहीं क्या है इसके पास, तो कुछ भी नहीं, तो खुदा तो दूर है, झूठियां दुआएं कर रहा है। नहीं मेरे चीजों, माल व दौलत यकीनन मैंने बताया कि अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारी नस्लों के साथ होगा। हमें खुदा ने दाऊद को बोला था ना कि दाऊद के पास कम था पैसा, उसको ख्वाब आया कि मैं हैकल बनाऊंगा, खुदा ने कहा नहीं तू नहीं बनाएगा हैकल। पता नहीं ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ नहीं जानता, तो खुदा सानू मना कर देगा कि नहीं तेनों भी नहीं दियांगा, मैं तेरे तो बाद तेरी औलाद में दियांगा। तो मेरे सिसो आपकी औलाद खुश होगी, वेल होगी, और माल व दौलत उनके पास होगा, उनके घर में होगा, और वो कभी भी कम नहीं होगा, और वो पाकीज़गी की दौलत होगी, अच्छी दौलत होगी, बतालत से कमाई हुई नहीं होगी, क्योंकि बतालत से कमाई हुई दौलत पर लगा के उड़ जाती है, वो रुकती नहीं है। तो इसलिए मेरे सिसो हम सब यकीनन ये बात चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि खुदा हमारी औलाद को क्या करे, अपने अंदर रखे, उनको बरकत दे, उनको मसरूर, उनको हर वक्त अपने हाथ के साए के नीचे रखे। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए परेशान होता है, औलाद माँ बाप के लिए परेशान हो ना हो वो बात अलग है, वो टॉपिक नहीं हमारा, लेकिन वो बड़ी डेंजरस बात है। तो असल जो बात है कि हम जो है अपनी औलाद के लिए जब परेशान होते हैं, हर माँ बाप होता है, जब हमारी औलाद की औलाद होगी वो उनके लिए परेशान होगी, हमारे लिए भले कम ही। लेकिन मेरे जिजो हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए हम क्या करें, खुदा के हुक्मों में मसरूर रहें, हमें मसरूर रहने की जरूरत है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादिक है। मेरे लिए और आपके लिए क्या चमकता है, नूर चमकता है मेरे जिजो। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। जब हम खुदा के हुक्मों में मसरूर रहते हैं तो यकीनन खुदा हमारे लिए नूर को पैदा करता है, तो नूर जो है वो हमारी नस्लों तक चला जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त क्या रहें, खुदा में मसरूर रहें, और इस बात को हम सोचे मत के हमें ये ब्लेसिंग मिल रही है, ब्लेसिंग नहीं मिल रही। ब्लेसिंग मिलनी मुकम्मल है, वो मिलनी ही मिलनी है, वो मिल के रहनी है, वो रुक नहीं सकती, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं का अजर हमें देता ही देता है। खुदा हमारी मेहनत को रखता नहीं है, रद्द नहीं करता। खुदा के साथ चले हुए आपके चंद कदम खुदा के साथ चले हुए जो चंद कदम हैं, वही जो है खुदा को पसंद है, और उसी की ब्लेसिंग खुदा आपको यकीनन देगा। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो यकीनन आपके माँ बाप खुदा के साथ चलते थे। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, और अपना कारोबार रास्ते से करेगा। और वो क्या करेगा, अपना कारोबार रास्ते से करेगा। जब ये खुदा के हुक्म है, रहम दिल होना, मसरूर होना, दोनों दूसरों की मदद करना, और किसी के काम आना, बाकी चीजें आपको पता है, झूठ ना बोलना और गुनाह ना करना, ये सारे 10 हुक्म आपको पूरे आते हैं। तो मेरे जिजो ये सारे 10 कमांडमेंट्स और दीगर बातें जो हैं, इनमें हमें मसरूर रहना, इनको याद रखना, इनके अंदर कोशिश करते रहना, इनके अंदर दाखिल होने की, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भूलना नहीं है। कोई हुक्म छोटा बड़ा सब जो है हमारे मानने के लिए है, ताकि हम जो है खुदा में मसरूर रहें, और खुदा को ये बात बेइंतहा जो अच्छी लगती है। एक हवाला भी चलो देख लेते हैं। हवाले तो मैंने 10 हवाले निकाले हैं, लेकिन एक ही देखेंगे, मैं 1-2 हवाला हम देखेंगे। आप निकालें ज़बूर 37, ज़बूर 37 की 26 वर्स आप निकालें जरा। ज़बूर 37 की 26 आयत। जी पढ़ें। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। फिर से पढ़ें जरा इस आयत को। वो दिन भर रहमत करता है और कर्ज देता है,
और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। और उसकी औलाद को क्या मिलती है? बरकत मिलती है। वो दिन भर जो है वो कर्ज देता है, यानी कि खुदा उसको इतना ब्लेस कर देता है कि लोग उससे लेने के लिए चले रहते हैं, लोग उससे डिमांड करते हैं, उससे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास आते हैं, और वो दिन भर उनको जो है वो बांटता ही रहता है, वो उनको कर्ज देता ही देता है। ये ब्लेसिंग के साथ ये चीज जुड़ी हुई है और खुदा यकीनन देता है। तो मेरे अजीजों, हम अगर चाहते हैं कि खुदा हमारी नस्लों को भी जो है वो ब्लेस करे, तो हमें यकीनन जो है तो खुदा के हुक्मों में मसरूर रहने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में एक जगह लिखा हुआ है कि मैंने शादी की औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। इसी में मेरे पास हवाला रेफरेंस भी है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ मसरूर तरीके से चलते रहेंगे, हर वक्त उसके हुक्मों पर हमारा ध्यान होगा, हम हर वक्त उसके घर में आएंगे। कुरान में लिखा है कि गीत गाते हुए ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ जाओ, हमद करते हुए उसके फाटकों में, उसके बारगाहों में दाखिल हो। तो हमें चाहिए कि हम हमद करते हुए खुशी से खुदा के घर में आए, ना कि रोते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, बिलबिलाते हुए, नहीं, बल्कि हम खुशी से खुदा के घर में आए। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें बरकत देगा। आज का मैसेज हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि हम जो है खुदा से अपनी नस्लों के लिए बरकत दे दें, और नस्लों के लिए बरकत देने के लिए हमें खुदा के हुक्मों में मसरूर रहने की जरूरत है, खुदा के हुक्मों को अपनी आंखों पर रखने की जरूरत है। बल्कि खुदा के कलाम में तो लिखा हुआ है कि इसको अपनी उंगलियों पर क्या कर ले, बांध ले, ताकि तू राह चलते, उठते, बैठते, लेटते वक्त इस कलाम का जिक्र अपनी औलाद से भी करते रहना और अपने भी ज़हन नशीन कर ले, ताकि तू इस पर क्या कर सके, अमल कर सके। तो अमल बेहद जरूरी है मेरे अज़ीज़ों। जब हमारी जिंदगी में अमल होगा तो हमारी औलाद भी जो है वो मुबारक होगी, और हमारी औलाद जो दौलतमंद भी होगी, हमारी औलाद के पास सारी वो सहूलतें होंगी जो हम चाहते हैं कि उनके पास हो। हमें चाहे नजर ना भी आए, लेकिन एक वक्त आएगा कि यकीनन जो है वो उनको मिलेंगी, और आपके मोहल्ले के लोग देखेंगे आपका किया हुआ, जो आपने बोया हुआ है, उसको आपके मोहल्ले के लोग देखेंगे। जैसे मैं तो उस वक्त छोटा बच्चा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उन बुजुर्ग साधु जी को कभी मिसाल भी दूंगा, कभी मैं स्टेज पर उनकी बात भी करूंगा, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन सिर्फ मैं तो एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता खुदा के बारे में, वो बस ऐसे ही होते हैं। तो मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। तो आज मैं उनकी गवाही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कलाम को पढ़ा है, उनकी ब्लेसिंग को देखा है। तो आपको जब लोग देख रहे हैं तो आपकी ब्लेसिंग को जो है आपके मोहल्ले के, आपके ही मुमकिन है कोई जिंदगी जो है उसको किसी के साथ उसको शेयर करती हुई नजर आए कि वो बहन खुदा के साथ चलती थी, वो भाई खुदा के साथ चलता था, आज उसकी नस्ल के लिए ये ब्लेसिंग है। हमने उनकी ये ब्लेसिंग देखी है। आपके बाद आपकी जो नस्ल है, छोटे बच्चे आपकी गवाही दे सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा किरदार, ऐसा अपना तरीकाकार रखना चाहिए कि लोग हमारी गवाही दें और खुदा हमें जो है क्या दे, बरकत दे, जो हमने खुदा के जरिए में मेहनत की है। खुदावंद आज के कलाम के लिए हम सबको बरकत दे। आमीन। जोरदार तालियां दिया खुदा।